मेरा नाम एक्चुअली कार्तिक मुरली है, मुरली कार्तिक नहीं है। तुम्हें मिश्रा सिद्धार्थ तो नहीं बुला सकता ना, तुम्हें मैं बुला सकता हूँ नहीं। जलेबी हर रोज खा सकते हो का मतलब ये थोड़ी जलेबी पसंद है तो, क्योंकि 25 जलेबी तो नहीं खा सकते ना। तो जी बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, शुरू करें क्रिकेट विद सिड, लेके आज मुरली कार्तिक का नाम। कार्तिक जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार सिड, काफी दिनों बाद मुझे पता चला कि आपके पास मेरी जैसी टोपी है। एक चीज अच्छी है कि दोनों ने ब्लू पहना हुआ है, भले ही अलग अलग ब्रांड हो पर ब्लू वही पहना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लीडिंग ब्लू एज ऑलवेज। ये लाइट ब्लू है, डार्क ब्लू है। How have you been, brother man? Been a while? All well, all well. It's been a long time. Just chugging along from one place to another, which is good, है ना? क्योंकि times have been tough for everyone, the world and people at large. तो काम कर रहे हैं, जब तक काम कर रहे हैं, you have to be in, or not even otherwise. Every day it's a day where you get up and you say thank the Lord for everything, gratitude for everything. How are you? काम करो या ना करो. How are you coping up with the bubble life? I mean, now you're in Dubai. It's a hard quarantine for what, 6 days? हाँ बिल्कुल, 6 दिन का हार्ड क्वारंटीन है। हार्ड तो नहीं कहूँगा पर हाँ क्वारंटीन है। मैं पिछले सितंबर में हम यहाँ आए थे ना आईपीएल में, तब से लेके अभी तक 81 RT-PCRs हो चुके हैं। तो ऑलरेडी यू कैन इमेजिन, अभी कल एक और है, तो बेसिकली 82 in 370 days. So one practically every 4.5 days. You know, for all the people who are watching it, just to kind of further break it down, is it on a daily basis? How does it work out? No, it's practically every 4.5 days. No. Agar if you look at it, if you do the maths, right, 82 RT-PCRs in 370 days is one practically every 4.5 days. But obviously, जब घर पे बैठते हो तो तब थोड़ी RT-PCR होता है, पर when we are in a bubble, right, so every 3-4 दिन एक RT-PCR होता है. And then when we are traveling, in fact, the first 3 days I had 4. The first 2 days I had 4 tests. So, and the biggest thing is, see, somebody like me, मेरे लिए बहुत आसान लगता है क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले रहूँ. तो मेरे लिए बबल आसान है क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मेरा रूम मुझे काटने को दौड़ रहा है या प्लास्टर फाड़ दूं मैं या कर्टन तोड़ दूं, बट बहुत लोगों को लगता है. सो सबका अपना अपना है, बट इट्स टफ क्योंकि आप किसी को देख नहीं सकते, आप अपने आप में बैठे हो और आपके लिए खाना बाहर छोड़ देते हैं, आप खाना खा के बाहर छोड़ देते हो, डब्बों में आता है, विच इज नॉट ग्रेट. इट्स मतलब खाने का न्यूट्रिशन चला जाता है. It's a luxurious CAD. It's a 5-star CAD. बिल्कुल, if you can look at it that way. But again, as I said, Sid, ऐसा मौका and ऐसा वक्त है कि एटलीस्ट हम लोगों के पास काम है. सही बात. That is the most important thing. जब पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है, बहुत लोगों ने अपना जॉब लूज किया है और बहुत लोगों के पास कुछ भी नहीं है या बहुत चीज़ें लूज की हैं या खोया है, उस वक्त हमारे पास हमें कोई बुला के काम करवा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 5-star होटल में रुका के कैद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Big announcement came the other day, which was Virat Kohli stepping down as the T20 captain. What do you think would have prompted that move? I mean, obviously there is a T20 World Cup next year as well. There is another 50-over World Cup in 2023. Is it only sheer workload, or is it also the fatigue of the bubble life? Or is it I would say it's a combination of everything, yeah. I would say it's a combination of everything, Sid, because if you look at it, you have to take him at face value and word value जो विराट ने बोला है सबसे important है, क्योंकि he has been captaining the side for a long time. It's never easy. And you're the cynosure of all eyes. जब आप विराट कोहली हो, one of the most famous cricket and sporting personalities on the planet. See, Sachin faced it, but obviously Sachin didn't captain for a very long time. But Sachin का जो responsibility था, हर बार Sachin used to go out to bat. The entire nation was praying कि Sachin रन बनाए. Sachin out हो जाते थे तो फिर लोग टीवी भी ऑफ कर देते या वो कर देते. Similarly, Virat has taken that
place. I'm not comparing, यहाँ पे किसी की तुलना नहीं हो रही, पर modern day cricket में he's one of the most popular personalities everywhere. So it wears you down. आदमी को लगता है कि यार we are फौलाद के बने हुए हैं और स्टील के बने हुए हैं, या वो नहीं होता. So obviously you have to take him at face value कि आप क्या करना चाहते हैं. Where do you see yourself is very important. ऐसा नहीं है कि he is 24. He is also at that stage where he'll be thinking कि यार मैं तीन चीजें कप्तानी कर रहा हूँ. It wears you down. आप किसी भी कप्तान से पूछ लीजिए. अभी जब हम माइक एथरटन, नासिर हुसैन को सुनते हैं, हम कितने सारे कप्तानों को देख चुके हैं कि बाल सफेद हो जाते हैं उनके. MSD के बाल सफेद हो गए, दादी के साथ, सौरभ के साथ हम खेलते थे, बाल सफेद हो गए. विराट के कितने बाल सफेद हो गए. एंड इट्स ऑल एट द एंड ऑफ द डे, बाहर से बंदा दिखता है स्ट्रेस फ्री, पर अंदर आपके पास पूरा नेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जितने मर्जी आप बड़े स्पोर्ट्समैन हो, फिर भी तनाव तो रहता ही है ना सबके पास. अपना खुद का परफॉर्मेंस का तनाव, टीम का परफॉर्मेंस का तनाव, जो कहाँ क्या करना है, इतनी सारी चीजें. इट्स नॉट जस्ट वन. आप, योर कैप्टन इज ऑल रोल्ड इनटू HRD डिपार्टमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, सब रोल्ड इनटू वन है. जब आप इंडियन क्रिकेट टीम या किसी भी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, तो इतने सालों से ही इज बीन कैप्टन. सो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट and say that chalo, we are going to get the best of Virat Kohli. We want to see the best of Virat Kohli, the batsman as well. We don't want to see him worn down. हमने हमेशा तारीफ की है कि विराट कोहली जब कप्तान होते हैं तो और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनका एवरेज और भी बढ़ जाता है. But it can't be the case all the time. Do you think there should be split captaincy, white ball अलग, यानी कि T20 और वनडे एक करे और टेस्ट कैप्टनसी कोई और करे? नहीं, देखिए, हमारे देश में ना स्प्लिट कैप्टनसी ऐसे वर्क करता नहीं है. इफ यू लुक एट इट, it's a big call from Virat to actually give up T20 कैप्टनसी because you want continuity. आप एक कंटिन्यूटी चाहते हो. हमारे देश के जो साइकी है या जिस हिसाब से हम हैं एज पीपल, आई डोंट थिंक स्प्लिट कैप्टनसी वर्क्स अ लॉट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अंडरस्टैंड करें. इट्स अ बिग कॉल, एज आई सेड, दैट विराट हैज गिवन अप फॉर व्हाटएवर रीजंस. एंड अगेन, एज आई सेड, मुझे लगता है कि व्हाटएवर जो बोला है, वी हैव टू टेक इट. वी कांट उसके रीड बिटवीन द लाइंस या लेयर्स नहीं ढूंढने चाहिए. Natural successor, would you go straight away? I know one option is very straightforward. One option is very straightforward, that of obviously Rohit Sharma. But Rohit Sharma is also not exactly a youngster. So would you rather go ahead with a KL Rahul? Look, it's an interesting call because आपने किसी को कप्तान बनाया है. Every time Virat has not been there, and it's been अपना Rohit who has been the captain. So अब suddenly आप आगे देख रहे हैं करके, you can't see. Short term gains भी important हैं, long term मैं समझता हूँ, पर जब आपने ऐसा नहीं किया कि जब विराट खेल नहीं रहे या विराट रेस्टेड हैं या किसी को कप्तानी करनी है, तो सक्सेसर कौन था? रोहित शर्मा था ना वाइस कैप्टन. तो आप सडनली उठा के नहीं देख सकते. एंड यू कैन नॉट अज्यूम कि रोहित शर्मा 34 का है तो वो 3-4 साल तो कप्तानी कर ही सकता है ना, जब तक खेल रहा है. As long as he is playing well, you've got 3-4 years of Rohit Sharma the captain as well. What I'm trying to say is Rohit Sharma is an established cricketer in the Indian team. He's an established winning captain of a team which has won so many titles. And everywhere you speak to any cricketer, they'll say he's a great head. He's got a great cricketing head. तो रोहित शर्मा क्या आप अज्यूम करेंगे कि अगर 3-4 साल हैं और अगर आपको कप्तानी मिल रही है, तो किसी को आगे क्यों देखना? जब KL राहुल अभी एक सीरीज पहले, टेस्ट हो या T20 में, he was not an established player. आप एक सीरीज के अच्छा रन बनाते ही आप कहते हैं कि चलो एक को दे दो. पर आप ये भी तो सोचिए ना, पिछले कितने सालों से रोहित शर्मा is a white ball giant of the team. Not only a white ball giant, he's also seen as a great captain. He's seen as a great वाइस कैप्टन. उसको आपने हमेशा वाइस कप्तानी दी है. अगर वाइस कप्तानी दी है तो नेचुरल सक्सेशन तो होना चाहिए ना, रादर देन चाहिए कि वो 34 का है तो चलिए हम किसी और को दे देते हैं. आई थिंक दैट इज स्टूपिड थिंकिंग मेरे हिसाब से. World T20 squad. I was personally very surprised with the exclusion of Yuzvendra Chahal. What was your reading out of it? बिल्कुल, even I was a bit surprised because he's been one of the best T20 bowlers in world cricket. और सडनली ड्रॉप कर देना आउट ऑफ नोवेयर. एंड द फनीएस्ट इज कि ड्रॉप करके रिजर्व में भी नहीं रखा. आपने सबको रिजर्व में रखा है, पर चहल को नहीं रिजर्व में रखा. एंड ऑल्सो रविचंद्रन अश्विन,
we were all flabbergasted that he didn't get to play even a single test match in England. How surprised were you? Again, very surprised क्योंकि एकमात्र genuine spinner है उस टीम में, and he's somebody who's not a mug with the bat. So obviously you're a bit surprised and a tad surprised कि आपने उसको World Test Championship में खिलाया जब swinging conditions थे और he was the best spinner on view. So obviously जब ऐसे होता है तो then you are a bit surprised, isn't it? And very surprised. Does he become an automatic pick in the starting 11 come the 24th of October versus Pakistan? No, not necessarily. तो आपकी जीवनी के बारे में पढ़ रहा था मैं. मेरी जीवनी के बारे में. You wanted to be a genetic engineer growing up. बिल्कुल. And you wanted to be a fast bowler as well in the initial days. Fast bowler नहीं. Fast bowler तो नहीं था. I'll tell you. I wanted to be a genetic engineer. जब मैंने क्रिकेट शुरुआत की थी, I wanted to be like Garfield Sobers, Sir Garfield Sobers. Right. तो इस वजह से मैं सीम बॉलिंग भी डालता था नए बॉल से. जब गेंद पुरानी होती थी तो उससे भी स्पिन डालने की कोशिश करता था. बैटिंग करता था नंबर 4 पे, विकेट कीपिंग की हुई है और मैं चाहता था कि हर जगह मैं फील्डिंग करूं क्योंकि सर गारफील्ड सब कुछ कर सकते थे तो इसलिए मैं वैसे बनना चाहता था. वो अलग बात है कि सर गारफील्ड का फील्ड में भी नहीं रह पाए पर तो जो जेनेटिक इंजीनियर बनना चाहते थे आपने अपने जेनेटिक्स पहचान ली. बिल्कुल पहचान लिया, बहुत जल्दी पहचान लिया कि मैं किसी के भी काबिल नहीं हूँ. यही मैंने पहचान लिया जल्दी से. 2004 में हम पाकिस्तान गए. वो भी एक बहुत बड़ी सीरीज थी क्योंकि हिस्टोरिक सीरीज थी. इतने साल बाद हम पाकिस्तान गए. पाकिस्तान को हमने ओडीआईज में भी हराया, टेस्ट क्रिकेट में भी हराया. जस्ट शेयर योर इंप्रेशंस अबाउट फर्स्ट द पाकिस्तान टूर 2004. अनरियल क्योंकि उस टीम में ना मुझे लगता है 2 या 3 लोग ही थे जो पाकिस्तान पहले टूर कर चुके थे. एक मैं था, एक सचिन था. मैं आई हैड गॉन ऑन एन 8 टूर इन 1997. मैं और अजीत वगैरह गए थे, हेमंग बदानी वगैरह. और जब हेमंग था मेरे साथ तो हेमंग वनडेज के लिए था तो हेमंग नहीं था, सॉरी हेमंग 1997 में नहीं था, मैं और अजीत ही थे. सो आई वाज एक्चुअली आई डोंट नो वेदर अजीत वाज पार्ट ऑफ द वनडे टीम और नॉट. आई कांट रिमेंबर, मुझे नहीं लगता. I think he was injured or something after Australia. So it was a very important thing कि पाकिस्तान जा रहे हैं सबसे पहले. तो इतने साल बाद एक होता है आप ए टीम के साथ गए 6-7 साल पहले. उसके बाद जब हम गए थे एक तो एक अच्छा मोमेंटम था, कॉन्फिडेंस था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके आ रहे थे, बहुत अच्छा करके आए थे. और जब हम पाकिस्तान पहुंचे ऑब्वियसली आपको एक अलग फीलिंग है. देखिए क्रिकेट तो वही है, सिर्फ कहीं किसी के साथ भी खेल लो, आप गली में खेल लो या कहीं पे भी खेल लो, स्टेज बढ़ जाता है, ऑब्वियसली क्वालिटी बढ़ जाती है. तो वहां जब हम पहुंचे तो एक तो there was so much talk of security. तो जब हम जाते थे तो सारे ऐसे लगता था मिनिस्टीरियल था सब कुछ कि मीलों दूर कॉर्डन ऑफ है, बगल में आपके आगे कॉन्वॉय है सिक्योरिटी का, बगल में चल रहे हैं वो बिल्कुल मुस्टंडे बड़े बड़े राइफल लेके, और हर बिल्डिंग से ऊपर देखो तो स्नाइपर्स लगे हुए हैं. हाँ, और बेचारे लोगों का सोचो कि कितना ज्यादा ट्रैफिक प्रॉब्लम होता होगा क्योंकि अगर हम जा रहे हैं एक रोड पे पहले से उनको रोका हुआ है और उसके अलावा जब तक एक स्टेज तक जाते नहीं है तब तक पीछे से अलाउ भी नहीं करते. So I can imagine the amount of problems people of Pakistan would have faced. But for us, it was like, oh यार ये क्या है? मतलब this kind of security is uncalled for. हमें मिलता है security. Sometimes intimidating क्योंकि आप कुछ normally कर नहीं सकते. एक अलग type का bubble है in a way if you look at it उसी time से कि आप अपने आप में हो, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप कहीं कुछ कर नहीं सकते. इन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बंदा गया हुआ है यहाँ से पाकिस्तान, आपको पता नहीं है कि क्या हॉस्पिटैलिटी है, क्या प्यार से लोग आपसे मिलते हैं. यहाँ तक कि जो रिक्शा पुलर्स थे या कोई भी था, इंडियन से पैसे नहीं ले रहे थे. सो यू हैव टू इमेजिन दैट काइंड ऑफ मैग्नानिमिटी कमिंग फ्रॉम द अदर नेशन. एंड हमेशा हम गलत बात, मतलब एक दूसरे को यही सुनाया जाता है कि ये खराब है वो खराब है, रादर देन लुकिंग एट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स. क्रिकेट की बात करें तो ऑब्वियसली क्रिकेट वाज हाई क्वालिटी बिकॉज उनकी प्लेयर्स ही इतने तगड़े थे. एंड इट वाज ब्रिलियंट बिकॉज पहला मैच हम कराची में जीते जो पूरी दुनिया देख रही थी. एक हाई स्कोरिंग मैच था. 9 or 10 odd were required. I think Moin Khan was very dangerous. Moin Khan is a dangerous player and people shouldn't forget the Mohammad Kaif catch जहाँ पे हेमंग बदानी भी तो था. सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हेमंग भी तो था उस सीरीज में. Nearly knocked his jaw off. But I don't think Hemang was with me in the 1997 trip. So it was the first trip for Hemang as well. So
आई कैन नेवर फॉरगेट दैट गेम जो हमने हाई स्कोरिंग मैच जीता. ग्राउंड इतना बड़ा पर सिक्योरिटी के चक्कर में 30 40 50 यार्ड अंदर कर दिया था. अच्छा. और उसके बाद हम पिंडी गए. पिंडी में दे केम बैक वेरी स्ट्रांगली. फिर पेशावर में दे केम बैक स्ट्रांगली. दे वर 2-1 up. Then I think there was a CAF 100 also where we leveled the series and then we went on to win. CAF 100 नहीं था. I think CAF got 80 odd or something. But he got runs. He got very important crucial runs, match winning runs. क्योंकि हम I think 4 wicket down थे. उसके बाद Rahul and Kefu got runs. And then again the 5th ODI which we won. So it was outstanding. That series itself was outstanding. What was that thing with Australia? Because I again very vividly remember 2004, they were 93 all out, again to be performing against them. What kind of a feeling it was, because they were obviously the powerhouse of cricket at that point in time? See, सबको 6 विकेट याद रहता है, पर उससे पहले 4 मैच जो खेले थे जिसमें अच्छा किया था वो किसी को याद नहीं रहता. बिकॉज चंडीगढ़ में आई बोल्ड रियली वेल. इनफैक्ट 48 या 49 ओवर में 2 रन दिए थे डाल के. मैथ्यू हेडन और एंड्रू साइमंस को आउट किया था. फिर अगला मैच नागपुर में आई थिंक 1 for 2 for समथिंग 30 ऑड था. फिर अगला मैच बड़ौदा में मैंने और भज्जी ने नया बॉल डाला था पावर प्ले में. पहले 7 ओवर में 15 रन दिए थे. तो वो सब दिखने नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पे आपको 6 पर दिखता है. और इत्तेफाक की बात है कि उस मैच से पहले मैं खेल भी नहीं. ऐसा हो सकता था कि मैं खेल नहीं रहा ऑन द मॉर्निंग ऑफ द गेम और द आफ्टरनून ऑफ द गेम, बिकॉज मेरे अंगूठे में चोट लगी हुई थी. तो वो टेप करके मैं वो मैच खेला था. ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही खतरनाक इंजरी थी, पर ऐसी इंजरी थी कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में फील्डिंग भी करनी पड़ती है. ऐसा नहीं कि बॉलिंग ही डालना है या करना है. तो उस लिहाज से आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान रखना पड़ता है. तो देखिए, सर्टेन थिंग्स हैपन एंड ऑब्वियसली कुछ टीमें होती हैं जिसके अगेंस्ट आप अच्छा करना ही चाहते हो. एंड कुछ मौके भी ऐसे हो जाते हैं कि एवरीथिंग, जो कहते हैं ना, कायनात पूरे आपकी तरफ घूम जाती है टू गेट थिंग्स डन फॉर यू. सिट. Historically, India used to play spin really well. अब ऐसा क्या हो गया है कि स्पिन के अगेंस्ट हमारे बल्लेबाजों को दिक्कत होती है? क्योंकि आप उस टाइम बहुत अच्छे स्पिनर्स खेलते थे ना. अभी पूरी दुनिया में और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतने अच्छे स्पिनर्स नहीं है ना. Yes, आप फास्ट बॉलर्स ज्यादा खेलते हैं, आप ज्यादा सीमर्स खेलते हैं, ज्यादा बॉलिंग मशीन में खेलते हैं. आप एक टाइम पे होता था कि हर फर्स्ट क्लास टीम में इतने सारे क्वालिटी स्पिनर्स थे. बाहर क्रिकेट में भी क्वालिटी स्पिनर्स थे. अभी सफेद बॉल क्रिकेट की वजह से कितने स्पिनर्स रह गए हैं जो ओल्ड स्कूल में फेंकते थे. बॉल डालते हैं अभी भी, मैं मना नहीं कर रहा, पर देखिए, मुझे सबसे पहले बिशन सिंह बेदी ने पूछा था हु इज अ स्पिनर का डेफिनेशन क्या है. अ स्पिनर इज समबडी हु स्पिन्स द बॉल. अभी जो डालते हैं वो 4 कदम से आके स्लो डालते हैं या तेज डालते हैं. बेसिकली घुमाने को नहीं देखते वो लोग. शेन वॉर्न बॉल घुमाते थे, हरभजन सिंह बॉल घुमाते थे, रमेश पवार बॉल घुमाते थे, ग्राहम स्वॉन बॉल घुमाते थे. वो वहां से घुमाने के बाद जो उन्होंने सीखा, फिर वो T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में आप डाल सकते हो. आप जब बचपन से ही आपसे कोई उम्मीद करेगा कि वेक्टर और डिफरेंशियल करो, तो नहीं हो पाएगा. तो वो एक समझना बहुत जरूरी है कि आप उल्टी तरीके से क्रिकेट सीख रहे हैं. क्रिकेट आप 4 डे डिफेंस से पहले आप लप्पा मारने को देख रहे हैं. नहीं हो सकता. लप्पा 4 बार लग सकता है, हर बार नहीं लग सकता. तो यू हैव टू लर्न इट द राइट वे. और इस वजह से हमारे पास वर्ल्ड ओवर स्पिनर्स नहीं. Well, what to do, Murli Kartik? Perils of the times we are living in, my friend. It's an age of instant gratification. वही है ना, हर कुछ जल्दी जल्दी चाहिए. इसलिए YouTube पे ज्यादा टाइम आदमी अब नहीं बिताता है, शो देखने के लिए भी नहीं. अब Instagram पे रील से काम चलाता है. It's the what you saying something? नहीं, I'm saying मुझे पता ही नहीं कि रील्स क्या होता है. आप है ना क्लासिकल लेफ्ट आर्म स्पिनर, इसलिए. Thank you so much. Well, guys, that was Murli Kartik, and on this very special episode of Cricket with Sid, where he shed light on his playing career, on World T20, on Virat Kohli, and the split captaincy. Well, आज के लिए इतना ही है. आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया. Until next time.